I filmed an entire intro और मेरे दांतों पे गंदे तरीके से लिपस्टिक लगी हुई थी. अस्सलाम गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम खदीजा, इफ़ यू डिड नॉट नो दैट ऑलरेडी. और आज की वीडियो बड़ी ही एक्साइटिंग है, स्पेशली मेरे लिए, लेकिन आई होप आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी अनबॉक्सिंग समथिंग वेरी स्पेशल एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू अ Q&A with you guys today. This package right here came to me 2 days before my nikah. That was 3rd January. 2 दिन पहले निकाह से आप कैसे होते हो, आपकी हालत कैसी होती है? Obviously you're frantic, you're trying to do all of these things, trying to seal all of these लूज एंड्स, और मैं बस यही करने की कोशिश कर रही थी. एंड दिस पैकेज अराइव्ड एंड आई वाज जस्ट, माई लाइफ जस्ट स्टॉप्ड फॉर अ सेकेंड. आई हैड डिसाइडेड बहुत टाइम पहले कि मैं इस पैकेज को या इस चीज़ को तभी एक्सेप्ट करूँगी व्हेन आई एम एबल टू डू अ वीडियो ऑन इट एंड शेयर इट विथ यू गाइज. एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट इट इन माई कबर्ड. दोस्तों घर वालों को दिखा के मैंने कबर्ड में रख दिया था इससे. एंड आई वाज जस्ट लाइक, जब तक मैं इस पर वीडियो नहीं करूँगी खदीजा, यू डू नॉट डिजर्व दिस, जब तक यू डू नॉट मेक अ वीडियो अबाउट दिस. सो ऑब्वियसली 2 दिन निकाह के बाद आई वॉज बैक वर्किंग, काम शुरू हो गया था, काम अपनी फुल स्विंग में था. एंड ऑल ऑफ अ सडन बैम, corona hit and all the work just came to a halt and we're all staying at our homes, and it took several meltdowns for me in this quarantine to take this baby out, make this video and tell myself that Khadija, you deserve this and you are allowed to feel good about your accomplishments. क्योंकि I've always told myself that अपनी accomplishments को कबर्ड में बंद करो और बस अपनी बुराइयां देखो. And that is a toxic trait that we are trying to get rid of in 2020. Are you with me? Leave a yes in the comments below. Getting back to the package, I just cannot wait for you guys to see this. My little baby. So we became a family of 100K in December last year, and I was just beyond, like it was beyond my belief कि जो चीज़ मैंने 2 साल पहले सिर्फ अपने पैशन के लिए क्रिएट की थी, क्योंकि मैं बचपन से मिशेल फॉन को देखती थी, ज़ुएला को देखती थी, बब्स ब्यूटी को देखती थी, और मुझे हमेशा से, मैं अपनी दोस्तों के साथ भी यही डिस्कस करती रहती थी, और हमारा एक लिटरली एक पैशन होता था एक तरह से कि मज़ा आता है किसी को देखने में. एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू क्रिएट वीडियोस एंड टू सी दैट 100,000 people just like want to listen to me, and 100,000 people are like me, and just it just makes me so happy, and it sort of gives me a purpose to talk about things that I believe in even more. And I just wanted to share this with you guys. I just wanted to share this with you guys because you guys have seen me grow, you guys have seen me become the person that I am today, and I'm just so grateful for that, for everyone who supports me, who builds me up, and who's always there to support my content as well. मतलब कभी जब आप सुनते हो कोई बहुत ही बुरा hate comment या people just being really just petty and mean about you and your life, it's easy to hate someone when you see them online and they just look all happy, and when you're in your life you're just like, हाँ ये तो हमेशा खुशी होती है, इसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी बुरा नहीं है. You're crying 1 second and then you have to come on camera for a video or a picture, and then you get a really nice message about someone who watches my videos and they make them happy. I'm just so happy that you guys choose to watch me. But yeah, let's just jump in. खदीजा, बहुत sad बातें हो गई. Dive into this baby right here. मेरी आवाज़ बहुत हाई पिच होने वाली है इस वीडियो में, so please excuse that. Look at this little baby. Wait, इसको ज़रा अपने कपड़ों में से उतारते हैं. I still can't believe this is here. I just literally cannot believe this is here, and I'm holding this, and I've had this, and जैसे मैंने पहले कहा, I didn't allow myself to have this or to enjoy this or look at it every day. I'm just so grateful that I have this in my life, and sort of nice reflection as well. But yeah, thank you so much you guys, and in honor of this I'm going to be doing a Q&A, and this video is going to be pretty long because it has already been filming for a while. So I'm going to put this baby right here because this baby is the star of the show. मैंने डब्बा भी संभाल के रखा हुआ है, पता नहीं मैं कब तक संभाल के रखूँगी, but that is just me. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आप मुझसे क्वेश्चंस करें. माई इंस्टाग्राम इज राइट हियर. अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ, आई विल कंटिन्यू टू डू मोर Q&As इफ़ यू लाइक दिस वन. लेट्स जस्ट जंप इनटू. राइट, कहाँ से शुरू करें? तो उस सवाल से शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चंस में, एंड दैट इज़ आपकी रुखसती कब हो रही है.
एंड आई गेट इट बिकॉज मैंने अपने निकाह वाली वीडियो के बाद बिल्कुल ही इस सिचुएशन के बारे में बात ही की। एंड द रीज़न बीइंग कि मेरा इरादा था हस्बैंड टैग बनाने का। इसलिए रुखसती का ये सीन है कि रुखसती होगी इंशाल्लाह अगले साल। ही इज स्टडिंग राइट नाउ, ही इज डूइंग हिज मास्टर्स, सो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू वेट इट आउट ऑब्वियसली टिल ही इज डन विद हिज मास्टर्स। आई वाज होपिंग टू डू अ हस्बैंड टैग आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम बाली बिकॉज ही वाज कमिंग, लेकिन फिर ये कोरोना वाला सिस्टम हो गया सारा। एंड लाइक जब से मैं बाली से वापस आई हूँ, क्वारंटीन करना था, आइसोलेशन करनी थी, देयर वाज the situation was really dangerous, so I just didn't want to put him in danger or me in danger or his family or my family in danger। इस तरह का हम लोग कोई सीन दोनों नहीं करना चाह रहे थे, so we just figured कि we'll meet up after this whole situation kind of calms down. So I'm just going to keep the questions that I should be answering with him for the tag, लेकिन I'll just ऊपर से मैं ऊपर जवाब दे दूंगी, but when he's with me तो हम साथ में बैठ के आपको बड़े लंबे डिटेल जवाब देंगे, सही है। So the next question is there any change in your life after being nikah-fied? Not really, because निकाह के बाद क्या चेंज होता है, मतलब like everything is pretty much the same, right? And also what might help in knowing right now is that we have known each other for the past 5 years, तो इस तरह का कोई सीन नहीं था कि मतलब अचानक से मिले और अब he's you know we're learning about each other after the nikah, इस तरह का कोई सीन नहीं है, it's pretty much the same। तो it's been good अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ आप सब अपनी दुआओं में याद रखें और माशाल्लाह भी बोलें, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सिमोना। Where did you and husband meet? We met in university, as I said. I've known him for 5 years, so he was in the same university as I was, और बस उधर ही दोस्तों के थ्रू हम लोग मिले थे। एंड वी वर फ्रेंड्स एट फर्स्ट, एंड देन वी डिसाइडेड कि जब दोनों अपने करियर्स में स्टेबल हो जाएंगे फिर जाके घर पे बात करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ही इज़ ऑलवेज बिन इन इस्लामाबाद, आई हैव ऑलवेज बिन इन हैदराबाद और कराची, तो लॉन्ग डिस्टेंस ही सीन रहा है। एंड समवन ऑल्सो आस्क्ड अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस इन दीज questions as well, how to make long distance relationship work। I feel like दोनों parties को willing होना चाहिए इस बारे में कि हमने we have to make sure that long distance works। there should be communication, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। अगर एक पार्टी की तरफ से कम्युनिकेशन कम या बंद हो जाती है तो इट जस्ट कैन नॉट वर्क। एंड आई फील लाइक इट हेल्प्स जब दोनों की सोशल लाइफ थोड़ी एक जैसी होती हो, या कहीं ना कहीं बैलेंस हो कि एक बंदे की सोशल लाइफ ज़्यादा है तो एक बंदे की पढ़ाई ज़्यादा, और एक बंदे की फैमिली लाइफ ज़्यादा है तो एक बंदे की पढ़ाई ज़्यादा हो। इस तरह से टाइम का डिविजन आपका बेहतर हो जाता है। वरना अगर एक बंदा बिल्कुल ही फारिग है और एक बंदा बहुत ही बिजी है तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। एंड लास्टली जो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई फील लाइक बहुत सारे लोग इसके साथ अग्री भी करेंगे, किसी भी रिलेशनशिप में तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में स्पेशली, बिकॉज यू आर लाइक ऑलमोस्ट ब्लाइंड, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन अदर पर्सनस लाइफ, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन से दोस्त हैं, किस तरह का सीन है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन, एंड द अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ टू मेक श्योर कि वो आपको ट्रस्ट करवाए, वो आपका ट्रस्ट तोड़े नहीं। सो आई थिंक दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। What is one thing one should never compromise in a life partner ever? Okay, the one thing that you should never compromise on is respect. अगर आपको कहीं से एक दफ़ा भी आपकी disrespect हुई है, that just means that there is a place where that is coming from, and I feel like a lot of girls just let go of that kind of behavior पहले, और वो कहती है नहीं it's going to be fine, सही हो जाएगा, ये है वो है। लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करते हो ना शुरू दिन से, तो जितना भी अच्छा बंदा हो ना, अगर they know that they can walk all over you, any person is going to do that। मतलब अगर उनको पता है कि वो आपको यूज़ कर सकते हैं, या वो आपको मतलब कुछ भी कह सकते हैं आपको, and you will be hurt by it or you will listen to them, then that is going to be a problem। आपको शुरू दिन से अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है कि this is the limit, this is where we draw the line, you cannot disrespect me more than that, I cannot disrespect you more than that। तो वो एक एक फिर healthy system बन जाता है। But if someone is crossing your boundaries, then that I feel like for me it's a deal breaker, it's something I would never compromise on। कि अगर मुझे कोई अब्यूज़ करे, किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाले, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली टफ टू से येस टू। आपने ईद की शॉपिंग कर ली? आमना ने पूछा हुआ है। यार मैं इस दफ़ा सोच रही हूँ कि ईद की शॉपिंग ना ही करूँ, क्योंकि मैंने एक तो शॉपिंग कर भी ली थी काफ़ी ज़्यादा अपने सफ़र के दौरान, और फिर उसके बाद
अभी घर पे बैठे तो कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, बट ऑनेस्टली लाइक ऑनलाइन सेल्स बहुत इंटाइस कर रही हैं मुझे, बट आई डोंट नो, मैंने अभी तक इस तरह से सोचा नहीं है ईद की शॉपिंग का, क्योंकि कहीं जाना भी नहीं है इस ईद पे, तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैंने हाँ मुझे इस टाइप का जोड़ा चाहिए उसके घर जाने के लिए, इस तरह कोई सीन है। सो इफ़ आई डू आई विल लेट यू गाइज नो, बट अभी सो फार मैंने इस तरह का कोई सीन नहीं किया। नया आपने पूछा हुआ है यू आर अ मनी सेवर और स्पेंडर, इफ़ यू आर सेवर देन व्हाट्स योर हैक फॉर सेविंग मनी? I feel like some people might disagree, my husband might disagree, but I feel like I'm a saver because until and unless मेरे पास एक safety net नहीं होता है with finances, I just don't spend. मतलब I'm not the sort of person who would borrow in order to spend on something until and unless मुझे पता हो कि मेरे पास ये पैसे पड़े हुए हैं। I feel like लड़कियाँ इतनी ज़्यादा फाइनेंसेस के बारे में बात नहीं करती, पता नहीं क्यों नहीं करती, या हमारा एक इनग्रेन हुआ हुआ है कि लड़कियाँ इस तरह इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती। बट आई जस्ट फील लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू नो कि आपने अपने फाइनेंसेस के साथ क्या करना है। आई हैव लिटरली सीन वुमेन जिनकी मतलब अच्छी से अच्छी पे होगी एंड दे विल स्पेंड ऑल ऑफ इट जस्ट ऑन शॉपिंग, क्लोथ्स और थिंग्स लाइक दैट। एंड ट्रस्ट मी, आई लव शॉपिंग एज मच एज द नेक्स्ट गर्ल, आई लव शूज, आई लव क्लोथिंग and everything like that, but what needs to be taught to our little girls and girls who are starting to earn nowadays is that you have to keep a safety net। आपके लिए सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अब गिवन सिनेरियो में, मतलब हमारी जनरेशन को अब नज़र आ रहा है कि सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोरोना क्वारंटीन सिचुएशन हो गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। सो वन एडवाइस दैट आई लाइक टू गिव इज़ ऑलवेज टेल योर सेल्फ कि मैंने इतनी अमाउंट अपने अकाउंट में at the end of the month रखनी है। If you are someone who just cannot save to save their lives, see for Reddit there, but if you're someone जिसको बिल्कुल जेब में पैसे रुकते ही नहीं है and you're just like नहीं खदीजा मुझे सारे पैसे खर्च करने ही होते हैं, then what you can do is just talk to yourself and tell yourself कि मुझे महीने के एंड पे छोटी से छोटी अमाउंट हो सकती है, 1000 रुपये हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, हर किसी का डिफरेंट एक मार्जिन होता है। कुछ भी हो जाए मेरे अकाउंट में इतने पैसे रहने चाहिए, बेशक मैं उस महीने नहीं करूँगी शॉपिंग, कोई मसला नहीं है, बट यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ एंड डिसिप्लिन योर सेल्फ दैट मच एंड देन बिल्ड अप ऑन इट कि एक महीने आपने 10,000 अकाउंट में होने चाहिए, 6-7 महीने तक आप इस तरह करो, उसके बाद जस्ट बिल्ड अप, बी लाइक अच्छा अब मेरे अकाउंट में 20,000 होने चाहिए महीने के एंड पे, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट सेविंग अप। नाउ इफ़ यू आर अ बिट मोर एडवांस एंड यू आर लाइक हाँ इतने पैसे तो रह जाते हैं लेकिन आई जस्ट कैन नॉट मेक बिगर investments, how you can do that is you can motivate yourself for saving for a purpose. Say let's say if you want to buy a phone, or if you want to buy a camera, or if you want to buy a more expensive kind of a gadget or anything like that, or the biggest thing if you want to buy yourself a trip, which obviously आजकल थोड़ा मुश्किल है, बट अगेन स्टिल यू कैन सेव अप फॉर थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह से आपकी मोटिवेशन ज़्यादा बेहतर रहेगी एंड देन इट फील्स जस्ट सो गुड व्हेन यू आर एबल टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। कैन यू टेल योर थ्रेडिंग रूटीन ड्यूरिंग क्वारंटीन एंड फॉर ईद? It's coming up. The new video is coming up. I hope you guys are excited for that. Things and incidents in your life helped you be such a self-confident and outspoken girl. ये खान्स 1813 का क्वेश्चन है एंड where do I start? नहीं, honestly पता है it's all a work in progress. All of us are a work in progress. आपको अगर लग रहा हो कि आप confident नहीं हो तो trust me, 95% of the people on the internet or in real life are not confident either. सबकी अपनी अपनी insecurities होती हैं, but you just have to realize that you cannot be criticizing yourself. And I know that sounds so easy because मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। यू जस्ट हैव टू रियलाइज द फैक्ट दैट दिस इज द बॉडी दैट यू हैव, दिस इज द फेस दैट यू हैव। अगर आप उसे नहीं चेंज कर सकते, आपके पावर में नहीं है, व्हाटएवर इट इज, बेशक उसमें ज़्यादा पैसे लगने हो, डिफरेंट लाइफस्टाइल लगना हो, डिफरेंट जगह लगनी हो, समथिंग दैट इज आउट ऑफ योर पावर शुड नॉट मेक यू इनसिक्योर। आप अपने आप को रोज़ देखें और बताएं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नोबडी इज़ बेटर और वर्स देन एनीवन, देयर इज इनफ स्पेस फॉर एवरीवन। बाकी आउटस्पोकन तो मैं बचपन से थी। एनीवन ट्राइज टू पुश मी और बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो you can't blame me. Next question is, when are you going to stay with your in-laws? शादी के बाद ही, obviously अभी जाऊँगी तो थोड़ा weird लगेगा उन्हें। Is what is that one thing you do that annoys your husband so much? I'll have to ask him that. Hey, what's up? हम फिल्म कर रहे हैं भाई। अच्छा। हाँ, there's a question for you. कैसी चल? What is it? What is that one thing that annoys you the most about me? You never answered this question. But like there's nothing
very obvious that annoys me. चलो obvious नहीं, not so obvious बता दो. No, like this, वैसे छोटी Like छोटी tiny things like क्या? difficult to point out, but then like they're so varied. There are and so many. हाँ? There are so many. नहीं, they're not many. मतलब like कोई वो नहीं है ना कि like you're always thinking about it या ऐसे हो कि यार हाँ ये चीजें तो बिल्कुल करेगी हमेशा करती रहेगी. नहीं नहीं, लेकिन मतलब कोई चीज ऐसी हुई हो ना and you're like कि अच्छा मतलब this was annoying. You know I have to force feed you हाँ that is नहीं annoying. ऐसे that's not, people will be like you're so fat, like he's lying. कोई और सोचो. और क्या है like I don't know मतलब like यार बहुत मुश्किल है यार ये सवाल. मतलब like anything, like I ask too many questions or I get too mad or you know I have a temper problem. No. I do. टेम्पर प्रॉब्लम्स are only कि तब होते हैं जब यार भूख बहुत लगी हुई होती तो तब होता है सारा. तो then it's difficult के भूख मैनेज करना है गुस्सा मैनेज करना है. So being hangry is your that's the part that annoys you. Probably sort of मतलब like not that much but जब that फिर आपको पता होता है ना खाना भी तो साथ में थोड़ा सा संभाल भी लो. और कोई नहीं है आई श्योर? और भी हैं. कोई फन सी बता दो. something that you know थोड़ा सा होता है इस्त्री करने में बहुत मुश्किल है. हाँ मुझे कपड़े इस्त्री करना नहीं पसंद and you are so annoying about कपड़े इस्त्री करना. हाँ तो that is something like you know that's like you know cringing me inside कि why isn't she like you know यार मैंने इतने ज़्यादा कपड़े आयरन किए ना सारी जिंदगी में. मतलब अब you're not doing it for anyone else you're just doing it for yourself. But I just don't want. 1 hour later. I hope you guys enjoyed this little तो नहीं था लेकिन Q&A session आपने enjoy किया होगा. अब if you've made it to the end of this video, I have a little surprise for you guys. Just to thank you guys for all the love and support you show to me, I want to give away 5 of you some really amazing makeup and skincare goodies. उनकी pictures होंगी अभी. So instead of doing just one huge giveaway जिसमें मुझे पता है कि एक विनर निकलता है और फिर सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, I figured I will give this easy sort of giveaway to 5 of you lovely ladies that have been following me, supporting me for the longest time. मेकअप भी है, ज्वेलरी भी है, आई स्टफ भी है, तो हर किसी को एक फेयर शेयर ऑफ yummy goodies मिलेगा. You only need to be subscribed to my channel and you need to leave a comment on this very video right here. कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपने मेरी पहली वीडियो कौन सी देखी थी और साथ में कोई कांटेक्ट का तरीका भी, या तो इंस्टाग्राम का हैंडल बता दें और यू कैन ऑल्सो लेट मी नो योर ईमेल आईडी और समथिंग लाइक दैट. प्लीज डोंट लीव योर नंबर्स क्योंकि कोई भी आपको कॉल करके तंग कर सकता है. एंड लिटरली द ओनली रूल इज टू बी सब्सक्राइब टू माई चैनल और कोई रूल नहीं है बिकॉज आई ओनली वॉन्ट टू थैंक my subscribers. That's why this video is not titled like a giveaway or anything like that to entice new people, because I literally only want to give away to the people who love my channel, who support me and who have been with me throughout this journey. So I hope you guys are excited. Give this video a thumbs up if you enjoyed it and I'll see you guys in my next one very soon. Till then, take care. Bye.